Yes, sir. So context-free languages are basically applied in designing the parsers. Parsers are nothing but they are just like trees, right? So these are used for describing block structure in programming languages, right? The second main use of context-free language is to describing the block structures of in programming languages. Then the syntax. So the basic syntax of context-free language is A goes to alpha, where capital A belongs to V and VNA variables. Vn are variables and alpha belongs to variable union sigma star, which means the combination of variables and terminals. Am I clear? So for example, you can write capital S goes to capital A, capital B, small a. So this is an example of context-free language, right? Am I clear? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा सबको? यस सर। चलिए आगे है हमारे पास, ये पेपर में 2 मार्क्स की पूछी जा सकती है आपसे. नेक्स्ट वी हैव अ डेफिनेशन फॉर डेरिवेशन ट्री. नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर डेरिवेशन ट्री. Derivation tree, or you can say that parse tree, derivation tree. Then you have generation tree, or you can say syntax tree, or you can say parse tree. All names belongs to the same tree, right? Or you can also say it as production tree. Derivation tree, production tree, generation tree, syntax tree. Am I clear? So ये सभी नाम जो है यो इस ट्री के अलग अलग नाम है, ठीक है? सो डेरिवेशन ट्री होता क्या है? The simplest definition is a parse tree is an ordered tree. The simplest definition is a parse tree is an ordered tree in which nodes are labeled with left sides of production and in which the children of a node represents its corresponding right sides. So this is the simplest definition of parse tree, right? So I'm repeating again. A parse tree is an ordered tree in which nodes are labeled with left sides of productions. ठीक है, अभी आपको बताता हूं कि नोड्स क्या होती हैं और चिल्ड्रन किसको बोला जाता है when we are constructing trees, right? So and in which the children of a node represent its corresponding right sides. Am I clear? So this is the simplest definition. We do have one more definition for parse tree.
So the second definition is, listen it carefully, a derivation tree also known as sparse tree for a context free grammar is a tree which satisfy the following conditions, right? Which satisfy the following conditions. Number one, every vertex has a label which is a variable or terminal or null. So first condition says that every vertex हर ट्री का जो वर्टेक्स होगा उसका एक लेबल रहेगा, राइट? सो विच इज अ वेरिएबल, वो एक वेरिएबल हो सकता है या फिर वो टर्मिनल हो सकता है या फिर वो कुछ नहीं होगा. सो फर्स्ट कंडीशन ये है. एम आई क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक जो वर्टेक्स है इट शुड बी वेरिएबल और इट कैन बी अ टर्मिनल और नल सिंबल. ठीक है, नल सिंबल. सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन सेज दैट द रूट हैज लेबल एस. सर किसकी कंडीशंस है ये? बेटा पार्स ट्री की. ओके. जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले डेफिनेशन लिखी थी हाँ वो जी, हाँ जी. सिंपल डेफिनेशन है, ये उसकी एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ. ठीक है सर. ठीक है. हाँ जी सर. पार्स ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो ये वाली कंडीशंस फॉलो करता है, जो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो फर्स्ट कंडीशन सेज दैट एवरी वर्टेक्स हैज अ लेबल. हर एक वर्टेक्स का कोई ना कोई लेबल होगा. वो लेबल क्या है? इट कैन बी अ वेरिएबल, इट कैन बी अ टर्मिनल और इट कैन बी अ null symbol, right? Second condition says that a root has a vertex, a root has a label s. means कि जोन सा भी आपका ट्री की जो बिगिनिंग होगी ना उसको हम बोलते हैं रूट नोड, और वो आपकी क्या होगी? हमेशा s, जो आपका प्रोडक्शन का पहला सिंबल होगा, दैट इज योर स्टार्टिंग सिंबल, राइट? थर्ड कंडीशन, the label of an internal vertex is an variable. Third condition says that the label of internal vertex, जो आपका in between vertex होगा उसका जो लेबल है it should be a variable. So label of internal vertex should be a variable. ये अभी आपको ना एग्जांपल के साथ में क्लियर करवाता हूं, अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखिए. कंडीशन नंबर फोर्थ, a vertex n is a leaf node if its input is a. कोई भी वर्टेक्स आपका लीफ नोड होगा, सपोज इट्स n, अगर उसका जो लेबल है वो a है. a मींस कि वो जो है वो इनपुट अल्फाबेट्स को बिलोंग करता है, मींस कि इट इज अ पार्ट ऑफ सिग्मा, राइट? शुरू से सुन लीजिए. अ वर्टेक्स n इज अ लीफ if its label is a, that is small a. Small a is your input symbol taken from sigma. Last but not the least, fifth condition, if the vertices n1 n2 so on up to nk written with labels, fifth condition says that if the vertices n1 n2 nk so on up to nk written with labels capital X1, capital X2 and so on up to xk are the sons of vertex n, are the sons of vertex n with the label a, then it can be written as a goes to x1 x2 so on up to xk n, right? क्लियर है? तो ये फिफ्थ वाली कंडीशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास वर्टिसेस हैं जिनको मैंने n1 n2 एंड सो ऑन अप टू nk के साथ लिखा है, राइट? एंड इनका जो लेबल है, इनका लेबल क्या है? x1 x2 and so on up to xk, right? Then you can write capital A goes to x1 x2 so on up to xn, means कि उसको हम प्रोडक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. So these are the 5 conditions which will be satisfied by a production tree.
राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये समझ आ गई कंडीशंस पांचों की पांचों? करें स्टार्ट इसको। हाँ जी बेटा, क्लियर है? हेलो, यस सर। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो कंसीडर द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। बेटा बाद में आना, मैं लेक्चर में हूँ, टीचर से बात करो जो कल्टी रूम में है। सो कंसीडर द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, consider the CFG S goes to X X, X goes to X X X slash BX slash XB slash A. Find the parse tree. You need to find the parse tree for the string. String will be optional. It will be given to you or it can't be given to you, right? So हमने क्या करना है इस क्वेश्चंस के लिए? ये फर्स्ट एग्जांपल है आपकी, एग्जांपल नंबर 1। सो यू हैव अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो आपके पास 1 2 3 4 और 5 प्रोडक्शंस गिवन है, राइट? सो बोर्ड के ऊपर यू विल बी गिवन विद 5 प्रोडक्शंस एंड you need to find out the parse tree for the string double B, quad A's and double B, right? So now I'm going to start with S. So this S is your main node. This is called root node. ये आपका फर्स्ट रूल है, राइट? रूल नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन कि आपकी जो रूट नोड है इट शुड बी ऑलवेज S. देन दिस इज योर इंटरनल वर्टेक्स। ये वाला X और ये वाला जो X है ये क्या है? आपके इंटरनल वर्टेक्स हैं। नाउ यू नीड टू कंस्ट्रक्ट दिस। आपको ये चीज बनानी है यूजिंग दीज 5 प्रोडक्शंस, राइट? सो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नाउ यू नीड B. So I will have to replace this X with the production having B. So it can be replaced with BX. So now you will get this B. Am I clear? After this, सर again, नहीं समझ लगी। क्या नहीं समझ आया बेटा? बताओ मेरे को। सर जी कैसे किया जाए BX? बेटा मेरे को गिवन क्या है? जो आपको गिवन है ये ऊपर स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है? हाँ जी। आपको क्या बनाना है? पार्स ट्री बनाना है और ये चीज आपको जनरेट करनी है इनको यूज करके। तो सबसे पहली मैंने प्रोडक्शन क्या यूज करी है? S goes to X और X, ये वाली जो प्रोडक्शन इसको यूज करके ये मैंने ट्री बनाया, ठीक है? आफ्टर दैट अब मेरे को पहला सिंबल क्या चाहिए? B. I require this B. तो मेरे को हाँ जी। X की वो वाली प्रोडक्शन ढूंढनी है जिसके अंदर B आ रहा हो। तो ये वाली प्रोडक्शन है। उसके बाद मैंने करा X will be replaced with B और X। समझ आया जोबन? हाँ जी सर। जी सर, जी सर। आगे चलें। हाँ जी Now सर। again you need second B. ਹੈਲੋ ਸਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। बेटा इधर भी पहले तो नहीं X ना ही है। आ रहा, वो बाद में आ रहा, लेकिन मेरे को पहले चाहिए हो तो गलत हो गया ना फिर। आप ये ध्यान में रखिए कि आपको चाहिए क्या। यू नीड टू जनरेट डबल बी, क्वाड एज एंड बी। उसके साथ कर देखिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं आएगा ना। ये ठीक है बी सर। बाद में है, मेरे को बी पहले चाहिए। ये ध्यान में रखिए आपको चाहिए क्या। ठीक है सर। समझ आया? हाँ जी सर। नाउ अगेन यू रिक्वायर, उसके बाद आपको क्या चाहिए? बी चाहिए ना। फिर सेकंड वाला भी बी है तो उसको फिर मैंने रिप्लेस कर दिया बी एक्स के साथ। अब आपको क्या मिल गया? बी मिल चुका है, बी मिल चुका है, मींस ये वाले पहले दो सिंबल्स मिल चुके हैं आपको। आपकी स्ट्रिंग यहां तक कंप्लीट है। आफ्टर दैट यू रिक्वायर क्वाड एज, 4 कंसेक्टिव एज। तो अब आपको एक्स को किसके साथ रिप्लेस करना है? अब आपको एक्स को रिप्लेस करना है। हाँ जी बताइए, किसके साथ रिप्लेस करूं? इस एक्स को एक रिप्लेस के साथ। ए के साथ। वेरी गुड। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ए के साथ। ये मेरे को तीसरा इनपुट सिंबल मिल गया, ये वाला।
After that, this x will be replaced with 3 consecutive x, x, x और x. समझ आया? आपकी स्ट्रिंग यहां तक मिल चुकी है आपको, डबल बी ए. सर एक्स 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 कैसे आ गया अब? हाँ जी अब सर 3x कैसे आ गए? बेटा, ये वाली x को रिप्लेस करा ना इसके साथ, हाँ जी इसके साथ जब रिप्लेस कर दिया तो ये चीज बन गई मेरे पास. यहां तक तो इसको मैं छेड़ नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास लीफ नोड आ चुके हैं, टर्मिनल की फॉर्म में आ चुका है. तो जब आपके पास टर्मिनल आ जाते हैं उसको मैं फर्दर रिप्लेस नहीं कर सकता हूं. जी सर. समझ आया? हाँ जी. नाउ नेक्स्ट x. अब तीनों के साथ a आ जाएगा. हाँ जी. अब ये वाला इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ सो दैट यू जनरेट अ स्पेस. इसको रब करके ना इधर लिख रहा हूँ आपके लिए. यहाँ पे था मेरे पास b और यहाँ पे था x. a सर a. एक मिनट, x x पहले a. x था उसके बाद a था. ये था ना b x और x को जनरेट करा था a, क्योंकि b a वाली कोई भी प्रोडक्शन नहीं है. समझ आया? यहाँ पे x है उसके बाद a है. क्लियर है? मींस ये वाला मेरा काम कंप्लीट हो चुका है. अब इसके बाद इसको रिप्लेस करूंगा a के साथ. ठीक है, इसको रिप्लेस करूंगा a के साथ. 1 2 3 3 a आ चुके हैं मेरे पास. ठीक है. आफ्टर दैट लास्ट मेरे को क्या चाहिए था? ए बी. तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे एक्स बी. सो दिस एक्स विल बी रिप्लेस्ड विद ए. तो अब देखिए, कंपेयरिंग ऑल द रीड नोड्स, you have generated the string double b 4 times a double b. Am I clear? सर सारे सर्कल में डालने राउंड में. हाँ जी हाँ जी, ये आपके बेटा लीफ नोड्स होती हैं. आपकी मर्जी है, अगर करना है कर दो, नहीं करना रहने दो. इट्स अप टू यू. मैं आपको समझाने के लिए सर्कल करा हुआ है कि ये आपकी लीफ नोड्स हैं. ये आपका रिजल्ट है जो आपको चाहिए था. आगे चलें. जी सर. सो सेकंड एग्जांपल क्या है? इसको बेटा जो आपकी लीफ नोड्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड योर आउटपुट, आउटपुट ऑफ अ पार्स ट्री. और इसको और क्या बोला जाता है? यील्ड. ये याद रखना, यील्ड ऑफ अ पार्स ट्री. और इसको और क्या बोला जाता है? फ्रंटियर. ये पेपर में 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है, एक्सप्लेन द फ्रंटियर ऑफ अ पार्स ट्री. ठीक है. तो जो आउटपुट होती है पार्स ट्री की उसको हम यील्ड बोलते हैं, और इट कैन बी रिटन एज फ्रंटियर ऑफ अ पार्स ट्री. क्लियर है? सेकंड एग्जांपल करवाऊं? हाँ जी, यस और नो? सर फिर एक्स बी सर फिर एच जूस नहीं आया फिर एक्स बी. एक्स भी बेटा करा तो है. ये देख, ये वाली Okay. प्रोडक्शन में एक्स बी, ये एक्स और बी, इसके अंदर बी एक्स सारे यूज हुए हैं बेटा. मतलब जूस सर सारे ही होने, अगर एक भी नहीं हो तो फिर मतलब नहीं बनेगी. नहीं नहीं, जरूरी नहीं है बेटा. जरूरी नहीं है कि जिन्नियां प्रोडक्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ यूज होन. इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज ऑल द प्रोडक्शंस गिवन टू यू. जी सर. ठीक है. सो सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या कहती है? लेट कैपिटल जी इज इक्वल्स टू, लेट कैपिटल जी इज इक्वल्स टू s comma a. These are two variables, a comma b small terminals p or s, where p consists of, where p consists of s goes to small a, capital S slash a, capital A goes to s b a slash ss slash b a. You need to prove s is equals to double a double b double a. ठीक है. आपको प्रूव क्या करना है? ये दिस strings you need to derive from this particular grammar. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. Prove that
S is equals to double A, double B, double A. So again, you need to start with, either you can start with S goes to small a, capital S, or you can start with S goes to A. If you will be starting with S goes to A, you can't generate this string, क्योंकि आपकी जो string है वो यहीं पर ही finish हो जाएगी. You can't generate further inputs, right? So the alternative way is you have to start with S goes to small a, capital S, right? So this, your first input is A. Again, you have to generate the another A, you have to generate the another A, then it will be replaced with S, B, small a. Am I clear? You just need to focus on your string which you are going to generate, right? So after that, here you require one more A, so S will be replaced with this A. So you are getting first two inputs and the third input, that is B. Now the fourth input is B. It means you will have to replace this A with BA, this A with BA, fourth, fifth, and the last input is small a. So this is S will be replaced with A. So now you are getting A, B, B, A, A. ठीक है, ये सर आपकी समझाओ बन एक गई बार है फिर. स्ट्रिंग. सर सारी समझाओ, रिपीट कर देना. सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको बनाना क्या है, ठीक है? सो मेरे को बनाना था डबल ए, डबल बी, डबल ए, ठीक है? उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना प्रोडक्शन ट्री बनाना शुरू करा. सबसे पहले मैंने उसको रिप्लेस करा, कैपिटल एस गोज टू स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल एस, राइट? सो उसको मैंने लिखा स्मॉल ए, कैपिटल एस. आफ्टर दैट दिस ए विल बी रिप्लेस्ड विद कैपिटल एस, small b, capital A, right? So this S will be replaced with small a because you need a second A as a input symbol. Next, this Sir, A will be इसमें replaced with सर B. हाँ जी बोलो बेटा. सर यहाँ पे एस को आपने ए से रिप्लेस किया है, पूरे से नहीं करना, ए कैपिटल ए फिर एस जैसे फर्स्ट बेटा में किया था. ध्यान में रखो कि आपके पास क्या गिवन है, आप क्या लिख रहे हो. मेरे को जो चाहिए था ना, मेरे को चाहिए क्या, डबल ए, डबल बी, डबल ए. तो उसके अकॉर्डिंग बेटा मैंने को रिप्लेसमेंट करनी है. ये ध्यान में रखिए कि आपको क्या चाहिए और क्या बनाना है आपको. ये सर शुरू फिर से तो आप बता रहा हूँ. शुरू सबसे से ही पहले आप आपको क्या पहले चाहिए से ही बताओ मेरे को. तनवीर क्या चाहिए सबसे पहले? सर ए. सबसे पहले ए इनपुट चाहिए. हाँ जी. तो मैं अगर इसको लिखूंगा एस गोज टू स्मॉल ए, तो विल इट बी फिजिबल? ठीक है सर. ये फिजिबल है कि नहीं है? नो सर. नहीं है. क्यों? क्योंकि सर आगे भी हमें आगे भी Very चाहिए good. ना सर. Shabash. Because we have to generate the further string also, right? It means you have to backtrack and delete it and हाँ जी. start with capital S goes to this production, small a, capital S. Am I audible? Yes sir, yes. Next, after that, again the second input is A. The second input is A. It means you have to replace A with either of these productions. Production number 1, production number 2, production number 3. So I have chosen first production. A will be replaced with S, small b, capital A. Right? After that, you require next A. So this S will be replaced with A. So here what you have, A, B. So you have two consecutive A's, a single B. Next you require again a B. So A की वो वाली प्रोडक्शन लेनी है जिसके अंदर B आ रहा हो, तो वो है ये. So it can be replaced with B, A, right? And last S बचा है, S को हमने रिप्लेस करना है A के साथ. तो ये आपके पास स्ट्रिंग आ गई A, B,
B, A और A. Am I clear? Yes, sir. ठीक है बेटा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपका पोल का क्वेश्चन है, वो आपने अटेम्प्ट करना है. ठीक है. तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं पहले आपको डायग्राम बना दूं. तो आपने बताना है कि इसका जनरेशन ट्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है. थर्ड क्वेश्चन है जो आपने खुद ट्राई करना है. और आपको फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग. अगर तो बन सकता है तो उसकी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है. थर्ड क्वेश्चन है जो आपका पोल का पार्ट है. कंसीडर द ग्रामर कैपिटल G विद प्रोडक्शन S goes to small a capital X capital Y, X goes to B Y B and Y goes to X slash. ठीक है. ये अपसाइलन है, X स्लैश अपसाइलन. अब इस केस के अंदर आपको क्या ढूंढना है? एक तो स्ट्रिंग ढूंढनी है और दूसरा फाइंड आउट करना है कि इसका प्रोडक्शन ट्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है. ठीक है. मैं पोल एक्टिवेट कर रहा हूं अभी. हाँ जी बेटा, कर रहे हो क्वेश्चन? सो फाइंड आउट द स्ट्रिंग इफ प्रोडक्शन ट्री इज पॉसिबल. ठीक है. तो आपको ट्री बनानी है, जनरेशन करनी है आपको स्ट्रिंग की, कि कौन सी स्ट्रिंग बनेगी इससे. कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूँ.
थोड़ा जल्दी कीजिए, हरी आप। Out of 51 students, only 21 have answered. So only 10 seconds. Last 10 seconds. Hurry up, answer fast. चलिए मैं एंड कर रहा हूं। So find out the string if possible, if the production tree is possible. So let's check. So first of all, you have to start with the first production, that is small a capital X capital Y. ठीक है, small a capital X capital Y, because you have only single production for S. After that you have single production for X, so it will be replaced with B Y B, right? So next this Y will be replaced with epsilon, ठीक है, and this Y will be replaced with epsilon. So the first smallest string which is driven is A double B. A double B, because this is your epsilon और इसकी कोई existence नहीं होती है, तो ये हम string में नहीं लिखते हैं, ठीक है? So first सर y smallest, को आप x से कर दो। हाँ वो सेकंड ऑप्शन में बताता हूँ ना, वो दूसरा अल्टरनेटिव लेते हैं, रुक जाइए। समझ आ गया बेटा? ए डबल बी कैसे है बेटा यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग आई ना, ए बी अपसाइलन बी अपसाइलन। अपसाइलन का मतलब होता है नल, तो उसको इनपुट में नहीं लिखते हैं, तो आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बन गई? ए डबल बी। सर अब साइलेंट दो जगह कैसे आ गया वैसे? बेटा उसको रिप्लेस करा ना, वाई की वैल्यू को रिप्लेस करा तो आया हमारे पास। जशन कह रहे हैं, जोबन नोटबुक देखो, बोर्ड देखो चंगी तरह, समझ आया कि नहीं? मेरे पास इधर 2 बार y है, यहाँ पे मेरे पास 2 बार y है, तो 2 बार ही आएगा एप्सिलॉन। समझ आ गया? नेक्स्ट, दूसरी दफा मैं क्या कर रहा हूं, दिस x विल बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल b कैपिटल Y स्मॉल b, एंड दिस y विल बी रिप्लेस्ड विद एप्सिलॉन, एंड दिस y विल बी रिप्लेस्ड विद x। तो जब मैंने इसको x के साथ रिप्लेस करा, अगेन यू नीड टू राइट x, x की फर्दर वैल्यू क्या है? b y b, right? And next this y will be replaced with epsilon, so the second string is a double b double b. So second string is a double b double b, right? क्लियर है? तुम्हें दो बननी थी बेटा जितनी मर्जी बन सकती है, एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स भी बन सकती है, जरूरी थोड़ी ना एक स्ट्रिंग होगी। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवन नहीं है तो आपको बनाकर देखनी है, ठीक है?
क्लियर है? अब आपके पास ऑप्शंस जो दी हुई हैं उसमें से देखिए कौन सी फिट बैठ रही है। ये वाली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ना एग्जांपल में? Yes, sir. So the answer is this. So one more string is given to you in the question, that is triple A ट्रिपल बी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रिपल ए बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर मेरे पास एक दफा ए आ रहा है उसके बाद ए ही नहीं है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट इज ट्रिपल ए ट्रिपल बी इज नॉट पॉसिबल। यू कांट जनरेट दिस स्ट्रिंग यूजिंग दीज थ्री प्रोडक्शंस। क्लियर है? सो आपका जो आंसर है वो आंसर आना है बी। आपका आंसर क्या आना है? बी आंसर आना है। समझ आया? हाँ जी, हेलो बेटा, क्लियर है? ये समझ आ गया कैसे स्ट्रिंग बनी आपकी ए Yes, 4 sir. टाइम्स बी? Yes. चलिए नेक्स्ट Yes, टॉपिक sir. है हमारा कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ डेरिवेशन ट्रीज। तो इस पोल का जो आंसर था वो आंसर था बी, बी आंसर था आपका। ठीक है, थर्टी 31 स्टूडेंट्स ने ठीक करा है, पता नहीं मेरे को अब कर कर देखा है या यूं ही आंसर तुक्के से ही लिख दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेरिवेशन ट्रीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड LMD and the second category is called RMD. LMD stands for leftmost derivation. RMD stands for rightmost derivation. Right? So listen the definition for LMD. If we apply production only to the leftmost variable at every step and your rightmost variable will be replaced at the last step, then you can say that your derivation is LMD. You need to apply every production upon your left variable, and at last step you are going to replace your right variable, then you can say that the definition is for LMD. Right? So for RMD, rightmost derivation tree says that if we apply production only to the rightmost variable at every step and your leftmost variable will be replaced at the last step, then you can say that the derivation is for RMD. Am I clear about these two differences? ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये LMD है और इधर मैं लिखता हूं RMD। अब एक मेरे पास प्रोडक्शन है यहाँ पे S goes to कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल S। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला मेरा जो S है वो मेरा राइट मोस्ट वेरिएबल है। दिस इज योर राइट मोस्ट वेरिएबल एंड दिस इज योर LMD लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। अब आपको हर एक LMD के केस के अंदर अपनी जितनी भी प्रोडक्शंस है वो B के ऊपर लगानी है, B को रिप्लेस करना है एंड दिस S विल बी केप्ट फॉर लास्ट स्टेप। इसको आप रिप्लेस करोगे लास्ट स्टेप के लिए। एम आई क्लियर? देन यू कैन से दैट द प्रोडक्शन इज फॉर LMD। और RMD के केस के अंदर क्या होता है, सेम एग्जांपल ले लो ABS, आपको हर प्रोडक्शन इसके ऊपर लगानी है और B को आपको लास्ट स्टेप के लिए रखना है। समझ आया? समझ आ गया बेटा? हाँ जी, यस और नो? Yes. No, sir.
एग्जांपल करवाऊं इसकी? नो सर। नो सर वाला एक कौन है? सर जोबन? एक को कुछ नहीं करना, हाँ जी, एक को कुछ नहीं करना ए मतलब। को देखेंगे, अगर उसकी जरूरत होगी तो उसको रिप्लेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मेरे को कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एलएमडी है, एलएमडी के केस के अंदर आपको हर एक प्रोडक्शन लगानी होती है अपना लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल के ऊपर, हर एक स्टेप के पे। और आपका जो राइट मोस्ट वेरिएबल है, इट विल बी रिप्लेस्ड एट द लास्ट स्टेप। एंड इन केस ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन आरएमडी, every production will be applicable to right variable and your left variable will be kept for last step। दोनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है? तो इसकी मैं फर्स्ट एग्जांपल करवाने जा रहा हूं। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रामर, लेट कैपिटल जी, let capital G be a grammar consisting of a production as given, consisting of a production as given, S goes to 0B slash 1A comma A goes to 0 slash 0S 1AA and B goes to 1 slash 1S slash 0BB. For the string 0 0 1 1 0 1 0 1, find number 1 leftmost derivation, number 2 rightmost derivation, number 3 parse tree। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, मींस इस टोटल ग्रामर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 प्रोडक्शंस आर गिवन टू यू। एंड फॉर पर्टिकुलर दिस स्ट्रिंग 00110101, इसको आपने ड्राइव करना है। पहला डेरिवेशन कैसे करनी है? यूजिंग एलएमडी के साथ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ। दूसरी डेरिवेशन किसके करनी है? हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ। और तीसरा आपको क्या बनाना है? पार्स ट्री। समझ आ गया क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए मैं पहले करने जा रहा हूं एलएमडी, इसको ध्यान से देखना। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई एलएमडी। सो एलएमडी क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो मेरे को एस की वो वाली प्रोडक्शन चूज करनी है जिसके साथ 0 आ रहा हो। तो मैं क्या लिखूंगा? S goes to 0B। So here you have only one variable, that is B. So this is your leftmost and it is also acting as rightmost. After that S goes to, यहाँ पे लिखते जाना है because जोन सी प्रोडक्शन आपने यूज करी है तो पहली के अंदर नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है? S goes to 0B. After that you require this 0 again, 0 you require 0, and for B you look for 0 alternative. So here for B you have 0 double B. So here you can write 0 B B. Am I clear? यहाँ पे आपको लिखना है because B goes to 0 double B। समझ आया? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। आगे चलें? हेलो 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 एम आई क्लियर? हेलो हाँ जी बताओ। सर, अभी तो आप लेफ्ट मोस्ट वो कर रहे हैं ना, तो राइट को क्यों लेंगे? राइट में भी आ रहा है ना। हाँ तो उसको मैं छेड़ूंगा थोड़ी ना बेटा, अभी इसके फर्स्ट प्रोडक्शन के अंदर तो एक ही वेरिएबल है ना, तो आपको उसी को जी लेना पड़ेगा, दूसरा तो वेरिएबल ही नहीं है। समझ जी रहे हो सर। बात? यस इनिशियली सर।
जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन शुरू करोगे पहले के अंदर तो आपके पास एक ही वेरिएबल आएगा ना। यस सर। अगर ये वाली प्रोडक्शन लेकर चलोगे s goes to 1a तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग के अंदर 0 चाहिए, तो आई Yes, विल sir. ऑलवेज स्टार्ट विद 0b नॉट विद 1a। समझ आया? Yes, उसके sir. बाद आपके पास दिस b विल बी रिप्लेस्ड विद 0 अब यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है और ये आपका राइट मोस्ट वेरिएबल है। अब आपने ये वाले b को कुछ नहीं करना है, इसको अपने लास्ट स्टेप के लिए रखना है, ठीक है। यू विल हैव टू कीप योर राइट हैंड साइड्स b फॉर लास्ट स्टेप एंड यू विल बी गोइंग टू अप्लाई एवरी प्रोडक्शन एट दिस राइट लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल दैट इज योर b। समझ आया? Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट सिंबल मेरे को क्या चाहिए, 1, तो b की 1 वाली प्रोडक्शन कौन सी है, 1s और 1। अगर मैं 1 फिल कर दूंगा तो b खत्म हो जाएगा, वो मैं नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1s b बिकॉज b गोज टू 1s। ठीक है, अगेन ये आपका s जो है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अगेन चाहिए था 1, तो s की 1 वाली प्रोडक्शन कौन सी है, s की 1 वाली प्रोडक्शन है 1a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1 1 a b। यहाँ पे आप रीजन दोगे बिकॉज s गोज टू 1a। यहां तक समझ आया? मेरे को रिस्पॉन्ड कीजिए, अदरवाइज मैं एग्जांपल्स करवा दूंगा और आपके ऊपर से निकलते जाएंगे। यस सर यस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे को सर नहीं Yes, sir. सर नहीं Yes, समझ sir. लगी। क्यों जोबर, Yes, तेन sir. क्यों नहीं समझ लग रही भैया आज? पता नहीं सर। बेटा इतना सौखा है, आई डोंट नो कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ क्यों नहीं आ रहा। पता नहीं सर, आज तो और तरह ही अंदर। तेरा ध्यान ही पता नहीं कितने हैगा। प्रोडक्शंस वाल वेख, सब तो पहला मैंने 10 की चाहिए है, तू की बनाना, स्ट्रिंग की बनानी है, 0 0 बनाना है। हाँ जी सर। एस दी केड़ी प्रोडक्शन लवा 10 मैनू एस दी ना सर 0 ਤੇ b। ले फर्स्ट प्रोडक्शन हो गई s गोज टू 0b, ऐसा समझ लग गया? हाँ जी हाँ जी। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट सिंबल क्या चाहिए, फिर 0 फिर 0 चाहिए, बट हाँ मेरे जी। को की हैगा आ b, ਤੇ b ਦੀ हाँ ਕਿਹੜੀ प्रोडक्शन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਆ? 0 bb। शाबाश, यहाँ पे लिख दिया मैंने s goes to 0 0 b b मींस ये वाला जो b है इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे रीजन लिख दिया बिकॉज b goes to 0 b b। समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। आगे चल, आगे क्या चाहिए तेरे को? सर 1 1। अब तूने क्या करना है, तेरे पास दो जो b है, ये वाला b आपका जो है वो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है। अब आपने लास्ट स्टेप तक अपनी सारी प्रोडक्शन इसके ऊपर लगानी है और इसको आपने लास्ट स्टेप के लिए रखना है, लास्ट में रिप्लेस करेंगे ये वाला b जो है। समझ ठीक आ है। गया? हाँ जी हाँ जी। नाउ b की कौन सी प्रोडक्शन है जिसके अंदर 1 है? सर फर्स्ट 1 में ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 1s। अगर मैं पहले वाली प्रोडक्शन लिखांगा 0 0 1 ਤੇ ਉਹ खत्म हो गया b, ਇਹ वाला हाँ जी। वेरिएबल खत्म हो गया ना। हाँ जी हाँ जी। मैं इनू खत्म नहीं करना, इस करके तुसी की करोगे b will be replaced with 1s b, इतने रीजन लिख दो बिकॉज b goes to 1s। समझ आ गया? सर इन्हों खत्म क्यों नहीं करना वैसे? बेटा क्योंकि मैं लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है ना, मेरी डेफिनेशन की है, आई हैव टू अप्लाई ईच एंड एवरी प्रोडक्शन ऑन लेफ्ट वेरिएबल, तो मेरा जो लेफ्ट वेरिएबल खत्म हो गया मेरी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। ठीक सर। इसलिए आपने उसको खत्म नहीं करना, उसको सेकंड लास्ट स्टेप तक बचा के रखना है। हाँ नेक्स्ट, जी अब s की जगह पे क्या चाहिए तेरे को? सर ये एक वाला और 1 चाहिए। हाँ जी। s की कौन सी प्रोडक्शन लिखूं बता मेरे को? एस की सर 1a। शाबाश, 1ab। रीजन यहाँ पे क्या आएगा, s goes to 1a। ठीक है, आपकी इनपुट स्ट्रिंग बनती जा रही है, पहले 4 इनपुट सिंबल्स आ गए हैं आपकी इनपुट स्ट्रिंग से। हाँ समझ जी। आ गया? जी सर। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, 0, हाँ जी। तो a को मैं किसके साथ रिप्लेस करूं बता मेरे को? एक सर सर 0s। शाबाश, 0 0 1 1 a goes to 0s b because a goes to 0s। बाकियों को समझ आ रही है? यस सर।
सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, जो आपने स्ट्रिंग बनानी है उसको आपने अपने ध्यान में रखना है, राइट। आफ्टर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड 0 0 1 1 0 for this s you require 1, right? So what will be the alternative production for s? That is 1a 1a। यहाँ पे आपका रीजन आ जाएगा because s goes to 1a, s goes to 0 0 1 1 0 1। now for this a आप सेकेंड लास्ट स्टेप के ऊपर पहुंच चुके हो, अब आप इस a को खत्म कर सकते हो, ठीक है। सो a विल बी रिप्लेस्ड विद 0 0 b बिकॉज a गोज टू 0, क्योंकि अब आपका सेकेंड लास्ट स्टेप आ चुका है एंड हमें लास्ट स्टेप के अंदर राइट मोस्ट वेरिएबल को मैनेज करना है ना। हाँ जी सर। तो अब आपका लास्ट स्टेप अप्रोच कर गया है 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 और लास्ट के ऊपर b की जगह पे क्या आ गया 1 बिकॉज b गोज टू 1, ठीक है। ये डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन क्या कहती है, यू हैव टू अप्लाई ईच प्रोडक्शन ऑन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, एंड यू विल बी एलिमिनेटिंग द राइट मोस्ट वेरिएबल एट द लास्ट स्टेप। तो मैंने लास्ट स्टेप के ऊपर राइट मोस्ट वेरिएबल को खत्म कर दिया एंड यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग बन गई है, देखिए जो मैं बनाना चाहता हूं। सो दिस इज योर LMD, समझ आ गया बेटा, यस और नो? Yes, 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 yes. आगे चलें। Yes, sir. अब हम करेंगे RMD, ये है आपका LMD। अब मैं करने जा रहा हूं RMD। RMD, so again you will start with s goes to 0b, क्योंकि 0 मेरे को चाहिए तो पहली प्रोडक्शन हमेशा आपकी यही रहेगी, 1a वाली आप नहीं ले सकते हो, समझ आ गया। उसके बाद सेकंड प्रोडक्शन विल बी सेम 0 0 b b, यहाँ पे रीजन दे दो बिकॉज b गोज टू 0 डबल b। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, अब आपको हर एक प्रोडक्शन लगानी है अपने राइट मोस्ट वेरिएबल के ऊपर एंड ये वाले वेरिएबल को आपने होल्ड करके रखना है लास्ट स्टेप के लिए, क्योंकि ये आपका क्या है लेफ्ट मोस्ट एंड ये आपका क्या है राइट मोस्ट, समझ आया। अब मैं करूंगा उल्टा, ठीक है। पहले हमने करा था लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल के ऊपर सारी प्रोडक्शन लगा रहा था और राइट को लास्ट के लिए बचा के रखा था। नाउ आई एम गोइंग टू डू रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। देखिए इसको, अब ये वाला जो b है इसको हम लास्ट के ऊपर इस 1 के लिए रख देते हैं कि ये वाले b को हम लास्ट के ऊपर प्लेस करेंगे 1 के साथ। उसके बाद प्रोडक्शन अपनी बनानी शुरू करें यहां से 1 के साथ। तो ये क्या चाहिए मेरे को 0 0 b, राइट मोस्ट वेरिएबल इज दिस b, सो b की 1 वाली प्रोडक्शन क्या है 1s, यहाँ पे रीजन दोगे आप बिकॉज 1s। आफ्टर दैट 0 0 b 1, s के बाद क्या आ गया आपके पास 0, तो s की प्रोडक्शन क्या आ जाएगी 0 b बिकॉज s गोज टू 0 b। समझ आ गया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, वेरी गुड। आफ्टर दैट 0 0 b 1 0, अब यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को 1 चाहिए, तो b की 1 वाली प्रोडक्शन कौन सी है 1s बिकॉज b गोज टू 1s। नेक्स्ट 0 0 b 1 0 1, नाउ फॉर s you require 0 because s goes to 0 b, ठीक है। सो लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप अप्रोच होने जा रहा है s goes to 0 0 b 1 0 1 0, this b will be eliminated with 1 because b goes to 1, and for last step 0 0 1 1 0 1 0 1 because b approaches to 1, so that's it। ये आपकी डेरिवेशन है यूजिंग RMD, राइट मोस्ट डेरिवेशन। हाँ जी, समझ आ गया?
यस सर। यस सर। अब बेटा थर्ड पार्ट क्या था हमारा? थर्ड हमने क्या ढूंढना था? पार्स ट्री। अब इन दोनों में से किसी एक का ट्री बना दो, ठीक है? वो ट्री कैसे बनाना है इसी को देखकर ही बनाना है। जैसे कि मैं आरएमडी का ट्री बना रहा हूं। आरएमडी का ट्री कैसे बनेगा? पहली प्रोडक्शन क्या थी मेरे पास? ये थर्ड पार्ट कर रहा हूं आपका पार्स ट्री का। पहली प्रोडक्शन थी आपके पास 0b, ठीक है? आफ्टर दैट this b will be replaced with 0b। उसके बाद मैंने क्या लगाया था? ये वाले b को 1s के साथ रिप्लेस करा था, तो क्या बन गया? 1s। नेक्स्ट ये वाला s रिप्लेस हुआ था 0b। उसके बाद b will be replaced with 1s and next s will be replaced with 0b and लास्ट के ऊपर, सेकंड लास्ट के ऊपर this b will be replaced with 1 and this b will be replaced with 1। देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1। सो ये आपका क्या बन गया है? पार्स ट्री फॉर आरएमडी। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ पार्स ट्री फॉर एलएमडी। तो दोनों में से एक ट्री बनाना है, जो सा मर्जी बना दो। ये ट्री समझ आया कैसे बना है? यस सर। ठीक है? चलिए एक पोल का दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जरा। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जरा फटाफट। यू हैव 2 मिनट्स ओनली, फटाफट कीजिए इसको। हाँ जी वेदांत सुनेजा, आर यू देयर? वेदांत। यस सर। वेदांत यस सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी। संचय, संचय, श्रीश, ये भी नहीं है, श्रीश भी नहीं है और संचय भी नहीं है। तनवीर, तनवीर। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। उसके हेलो। बाद वैभव, यस सर। अमीरोज, हेलो। हेलो। अमीरोज। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। हेलो। हाँ बताओ, बोलो। हाँ जी सर, तुम नाम लिया सीगा। हाँ समझ आ रहा? हाँ जी सर। हाँ जी। अमीरोज, सिमरनजीत कौर, रोल नंबर 377।
सिमरन समझ आ रहा? सोनिया, सोनिया, आधे बच्चे तो सोए हुए हैं मेरे को लग रहा है। हरनूर, यस हर सर। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए मैं पोल खत्म कर रहा हूं। सो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। पार्स ट्री इज आल्सो कॉल्ड सिंटेक्स ट्री। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। बाकी जो है वो आंसर नहीं है। फोकस ट्री इसको नहीं कहा जाता, डिलीशन ट्री भी इसको नहीं कहा जाता, और अब्स्ट्रैक्ट ट्री भी इसको नहीं बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ambiguity. Very important topic, ambiguity in context free grammar, or you can also say it as ambiguous grammar. बेटा इसका ना मैं आपको ट्यूट शीट भेजूंगा, उसके अंदर और एग्जांपल्स होंगी, उनको आप ट्राई कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने पहली ट्यूट शीट भेजी थी वो कर ली आपने सोल्व? मेरे ख्याल से किसी ने खोल के भी देखी नहीं होगी। जो मैंने ग्रुप में ट्यूट शीट शेयर करी थी आप लोगों के साथ, वो करी है कि बच्चे ने सोल्व? यस सर। चलो वेरी गुड, जिन्होंने करी है, जिन्होंने नहीं करी अच्छी बात है। सो इसकी डेफिनेशन पहले सुनिए। एम्बिग्यूटी इन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और यू कैन से दैट एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिग्यूटी इन CFG। ठीक है, सो डेफिनेशन इज a terminal string W belongs to L of G is ambiguous if there exist two or more derivation trees. If there exist two or more derivation trees, कोई भी स्ट्रिंग एम्बिगुअस कब कहलाई जाएगी? W एक एम्बिगुअस स्ट्रिंग है, वो एम्बिगुअस कब कहलाई जाएगी? जब उसके दो या दो से ज्यादा डेरिवेशन ट्री बनते हो, या फिर और देयर एग्जिस्ट टू और मोर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस। और ये और है बेटा, ध्यान में रखना, और देयर एग्जिस्ट टू और मोर RMD फॉर सेम स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग W जो है वो एम्बिगुअस तब कहलाई जाती है अगर उसके दो डेरिवेशन ट्री बनते हो, या उसका दो या दो से ज्यादा LMD हो, या और टू और मोर RMD हो। ठीक है, ये नहीं करना है, बच्चे गलती करते हैं पेपर में। एक LMD बनाया, एक LMD बनाया, एक RMD बनाया, और 1 + 1 2 हो गया, और बच्चे बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज एम्बिगुअस। ये गलत है, दिस थिंग इज रॉन्ग। ठीक है, आपको तीनों में से एक चीज करनी है, तीनों में से और है। और either you can draw its derivation tree, two or more than two derivation trees, two or more than two leftmost derivations, two or more than two rightmost derivations, then you can say that the string is ambiguous. समझ आ गई डेफिनेशन? यस सर। शाबाश। चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल क्या कहती है इसकी? लेट G बी ए ग्रामर हैविंग द प्रोडक्शंस। G आपके पास एक ग्रामर है हैविंग द प्रोडक्शंस S goes to S plus S, S star S, A/B, एंड आपको क्या करना है? W जनरेट करनी है। W इज इक्वल्स टू A plus A*B। ठीक है, एंड चेक वेदर दिस शो दैट द ग्रामर इज एम्बिगुअस। क्या करना है आपको? ये प्रोडक्शंस गिवन है, ये वाली चार प्रोडक्शंस गिवन है, प्रोडक्शन नंबर 1 2 3 और 4 फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो सकता है कि पेपर के अंदर आपका स्ट्रिंग गिवन हो, और हो सकता है कि पेपर के अंदर स्ट्रिंग गिवन ना हो।
ठीक है, सो इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट। सो इस केस के अंदर आपके पास स्ट्रिंग गिवन है a प्लस a स्टार b, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि वेदर दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, ये एम्बिगुअस ग्रामर है कि नहीं है। तो पहले मैं इसका आपको चेक क्या करना है, यहाँ ये जो स्ट्रिंग है ये दो या दो से ज्यादा डेरिवेशन ट्री बनाती है, दो या दो से ज्यादा एलएमडी बनाती है, दो या दो से ज्यादा आरएमडी बनाती है। ये तीनों में से एक चीज चेक करनी है, ठीक है। तो मैं आपको तीनों मेथड बता देता हूं, आपने लेकिन पेपर में एक चीज बनानी है, तीनों नहीं बनानी। तो पहले इसका करने जा रहा हूं एलएमडी नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने ली है s गोज टू s प्लस s। अब ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, और आपको क्या चाहिए a प्लस a स्टार b, ठीक है। तो आप क्या करते थे LMD के अंदर, यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्शन ऑन योर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। तो ये है आपका s गोज टू a प्लस s, ठीक है। उसके बाद आ गया a प्लस s स्टार s। अब आपका लेफ्ट मोस्ट ये है तो इसको रिप्लेस करेंगे, s गोज टू a प्लस a स्टार s, एंड लास्ट वन इज a प्लस a स्टार b। इसका रीजन लिख लो ब्रैकेट में, बिकॉज s गोज टू a, बिकॉज s गोज टू s स्टार s, because s goes to a and because s goes to b। समझ आया? ये है मेथड नंबर 1 फॉर LMD। एम आई क्लियर? LMD का Yes, मतलब sir. होता है कि आपने अपनी प्रोडक्शंस जो है वो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे पहले लगानी है। अगर आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पहले खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपने राइट मोस्ट वेरिएबल पे लगानी है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको क्या चाहिए था, s प्लस s, ये वाली स्ट्रिंग बनानी थी मैंने। सो फर्स्ट आई नीड टू राइट s प्लस s। तो ये वाला आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, इट विल बी रिप्लेस्ड विद a। आफ्टर दैट यू हैव ओनली वन वेरिएबल, दिस s विल बी रिप्लेस्ड विद स्टार। So s star s, s star s. After that, this is left, this is right. You need to replace this s with a. Now at last step, this s will be replaced with b. ये है आपका मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड LMD का, तो पहले हमने s प्लस s लिया था, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद s स्टार s, ठीक है। सो s गोज टू दिस, s विल बी रिप्लेस्ड विद s प्लस s, क्योंकि ये वाला लेफ्ट है ये वाला राइट है, पहले इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज s गोज टू s प्लस s, s प्लस s। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ये है तो इसको रिप्लेस करा a के साथ, a प्लस s स्टार s। रीजन आ जाएगा s गोज टू a। नेक्स्ट वी आर हैविंग a plus a star s, reason is s goes to a, and at last step a plus a star b, reason आ जाएगा s goes to b। So you are having two different methods for LMD, so the string is ambiguous, the grammar is ambiguous। समझ आया? यस Yes, सर। sir. इसी तरह से आप राइट RMD के साथ भी कर सकते हो, वो भी करवा दूं आपको। आपको एक मेथड यूज करना है, इधर यू विल गो फॉर LMD, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस की दो डिफरेंट डेरिवेशन कर दो, या RMD की दो डेरिवेशंस कर दो, या दो अलग अलग पार्ट्स ट्री बना दो, ठीक है। तो मैंने आपको LMD के साथ करवा दिया है, अब RMD भी देख लो इसका, ठीक है। RMD भी एक दफा देख लो, लेकिन आपने पेपर में एक करना है, दोनों नहीं करने। और ये ध्यान में रखना कि एक LMD और एक RMD नहीं करना है, दोनों के दोनों LMD होने चाहिए या दोनों के दोनों RMD होने चाहिए। सो नाउ सेम एग्जांपल विद RMD, सेम एग्जांपल विद RMD नंबर 1। सो फर्स्ट प्रोडक्शन इज s गोज टू s प्लस s, ये है आपका राइट वेरिएबल, इसको रिप्लेस पहले करूंगा s प्लस b, s गोज टू
अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना, रीजन लिखते जाओ, s goes to b. नाउ दिस s गलत हो गया, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा s स्टार s, because s goes to s star s. Now right variable is this s plus s star b, रीजन आ जाएगा s goes to b. उसके बाद आ जाएगा s goes to s plus a star b, रीजन आ जाएगा s goes to a. एंड एट लास्ट स्टेप a plus a star b, रीजन आ जाएगा s goes to a. तो यही आपको चाहिए था, ये RMD का नंबर 1 मेथड है। नंबर 2 मेथड RMD मेथड नंबर 2। तो पहले हमने s प्लस s लिया था, अब मैं लेकर चल रहा हूं s goes to s star s, ठीक है। सो RMD ये वाला है, इसको पहले रिप्लेस करेंगे s goes to s star b, यहाँ पे रीजन दे दो s goes to b. Next goes to s plus s star b, because s goes to s plus s, so s goes to s plus a star b, ठीक है। राइट के ऊपर लगा रहा हूं, लेफ्ट वेरिएबल को लास्ट पे खत्म करना है हमने, रीजन आ जाएगा s goes to a, एंड लास्ट के ऊपर हो जाएगा आपका a plus a star b, रीजन विल बी s goes to a. So here you have two different methods for RMD. This means the grammar is ambiguous. This means the grammar is ambiguous. हाँ जी बेटा, समझ आ गया? यस सर। सर अगर दोनों सेम सॉल्व हो जाए तो उसी को कहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, अगर दोनों आपकी सेम, दोनों साइड के ऊपर ये चीज सेम आनी चाहिए, स्ट्रिंग सेम आनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग डिफरेंट होगी तो ग्रामर एम्बिगुअस नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। चलो एक पोल का क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट पोल है, ठीक है, तो आंसर कीजिए आप। सर डेरिवेशन ट्री सर इसके बन नहीं सकते ना? हाँ जी बेटा, डेरिवेशन ट्री इसी के बनेंगे, यहाँ दोनों LMDs के डेरिवेशन ट्री बना दो या दोनों RMDs के डेरिवेशन ट्री बना दो। लेकिन सर हमने तो बस एक ही करना है, जहाँ RMD कर लो या LMD कर लो, हाँ, डेरिवेशन ट्री दो तो बनाने बनेंगे ही ना, बनाने हैं। जे तेरे LMD ते दो LMD कीते सी ना, तो दो डेरिवेशन ट्री नहीं आएंगे। नहीं सर आने दो, पर तुम कहना ना LMD कर सकते या RMD कर सकते, बेटा वही तो बोल रहा हूँ तेरे कंपल्सरी को, है। यहाँ दोनों दो LMD के दो ट्री नहीं बनेंगे, इसी तरह से दो RMD के दो ट्री नहीं बनेंगे। बनेंगे सर वही, लेकिन वो कंपल्सरी है डेरिवेशन ट्री? नहीं बेटा, तीनों में से एक चीज करनी है, यहाँ तूने डेरिवेशन ट्री बनाने हैं दो, ठीक है, सेम स्ट्रिंग दो डिफरेंट डेरिवेशन ट्री के साथ बनानी है, ठीक है। यहाँ सेम स्ट्रिंग को दो LMD के साथ करना है, यहाँ सेम को दो RMD के साथ करना है आपको। क्वेश्चन समझिए हाँ मेरा, जी। आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, समझ आया कि नहीं आया? जोबन समझ आया कि नहीं? सर इतने सर तो 3 कंडीशन लिखाई हैं, ठीक है हाँ सर। जी, सर तो 3 कंडीशंस लिखाई हैं कि ਜਾਂ दो डेरिवेशन ट्री बना लो, यहाँ ਜਾਂ हाँ दो या दो तो बाद LMD होने चाहिए ਆ, ਜਾਂ हाँ दो या बिल्कुल दो तो बाद RMD होने चाहिए ਆ। हाँ। लेकिन सर डेरिवेशन ट्री उਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ LMD ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ RMD ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। तू सीधे भी बना सकता बेटा डेरिवेशन ट्री, जे तेनू आंदा आ ते। ਹੁਣ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ नहीं ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ नहीं नहीं बेटा, मैं ਇਹਦੇ वो ਵਿੱਚ। कह रहा तिन्ना चो एक चीज करनी है, ਹਾਂਜੀ यहाँ ਹਾਂਜੀ LMD ਉਹੀ जे ਕਹਿ तेरे ਰਿਹਾ सर। LMD दोनों आ गया उत्थे छੱਡ दियो, अगों नहीं करना। जे तेनू LMD करना ठीक नहीं आंदा फिर RMD दे नाल कर दियो, ठीक सर। जे तेनू दोवें चीजां नहीं आंदियां फिर T बना दो। समझ आई? उदा ਹਾਂਜੀ ठीक, ਹਾਂਜੀ 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 ठीक ठीक। हेलो। हाँ जी हेलो बोलो सर, दोनों एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा? बेटा, समझ क्यों नहीं रहे हो? एक बनाना पड़ेगा आपको, दोनों में से एक करना है।
ठीक है सर। इधर यू विल गो फॉर LMD, 2 बनाने हैं LMD, या बनाने हैं 2 RMD, या आपको 2 डेरिवेशन ट्रीज बनाने हैं। समझ आया? यस सर। चलिए क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, चेक कीजिए जरा। चलो बेटा, आपको पोल का एक क्वेश्चन आया, इसको अटेम्प्ट कीजिए जरा। इफ जी इज ग्रामर एक ग्रामर आपके पास गिवन है, इसको आपने चेक करना है कि ये एम्बिगुअस है कि नहीं है। एस गोस टू एस बी एस एच बी डी एस एस जो है एस बी एस एस पोल शो हो रहा। क्यों पोल क्यों नहीं शो हो रहा? कितने बच्चों के पोल शो नहीं हो रहा? अब शो हो गया सर, हो गया। सो बेटा आंसर कीजिए, मैं फिनिश कर रहा हूं पोल। एक तो आप टाइम बड़ा लगाते हो आंसर करने में।
सो इसका आंसर जो है दैट इज यस। नो बेटा आपने किसके अकॉर्डिंग करा, मेरे को समझ में नहीं आया। आपको स्ट्रिंग गिवन नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये एम्बिगुअस नहीं है। इसको चेक कीजिए। तो स्ट्रिंग विच इज गिवन टू यू, कोई भी गिवन नहीं है, तो इसको देखते हैं प्रोडक्शन क्या है, एस बी एस और ए। एस बी एस और ए, एस गोज टू एस बी एस स्लैश ए। अब ये आपने चेक करना है वेदर दिस इज एम्बिगुअस और नॉट। तो पहले मैं इसका एलएमडी बनाता हूं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, सो एस गोज टू एस बी एस। ठीक है, तो एक दफा सर इसको आरएमडी करो, हाँ आरएमडी जी, करो, क्या हुआ? आरएमडी करो सॉल्व। आरएमडी से आ रहा है? नहीं सर, मैंने कहा कि आरएमडी सॉल्व करो। आरएमडी करूं? RMD number 1, S goes to SBS. So this is your right variable. It will be replaced at the first side. So you can write it as SBA. उसके बाद S goes to, इसको फिर replace कर दिया SBS BA। ठीक है, स्ट्रिंग बनानी है ना, तो ये मैंने क्या लिखा, S goes to, यहाँ पे आया मेरे पास S, आरएमडी के साथ कर रहा हूं तो राइट वेरिएबल ये है एस बी, एस विल बी रिप्लेस विद ए बी ए, और लास्ट स्टेप के अंदर क्या आ गया, ए बी ए। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई ए बी ए। ये एक मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं आरएमडी का, नंबर 2 मेथड। ठीक है, तो यहां पे स्टार्टिंग पे तो वही आएगा, S goes to SBS. After that, ये वाले पहले S को मैंने रिप्लेस कर दिया था ना, अब इसको रिप्लेस नहीं करूंगा A के साथ, ये नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा SBS। This S will be replaced with more SBS। ठीक है, ये वाला S जो है उसको रिप्लेस कर दिया SBS। उसके बाद R, दिस इज SBA। SBS. Now this S will be replaced with A, BA, and last production will be ABA. So here you are having two different approaches for RMD. The string is ambiguous. समझ आया? समझ आया बेटा कि नहीं आया? आरएमडी की पहली प्रोडक्शन थी SBS, तो राइट वाला वेरिएबल आपका ये वाला था, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने ए के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, उसके बाद इसको नीचे चले गए, फिर इस एस को रिप्लेस करा SB ए के साथ। उसके बाद राइट वेरिएबल ये है, इसको रिप्लेस करा ए के साथ, एंड लास्ट वाला लेफ्ट वेरिएबल विल बी रिप्लेस्ड विद दिस ए। दूसरा मेथड, S goes to SBS. This S will be replaced with SBS, and right variable is this S. It will be replaced with A. After this your right variable, this is replaced with A, and your left variable will be replaced with this A. So you have two different approaches. It means the string is ambiguous. समझ आ गया? सर अगर आरएमडी से नहीं होगा तो फिर एलएमडी से भी चेक करना पड़ेगा? नहीं बेटा, जरूरत नहीं है, अगर एक से हो रहा है तो बाकियों से भी होगा। अगर एक से नहीं होगा तो इसको जरूरत नहीं है यशवंत, अगर एक से हो गया तो बाकियों से भी हो जाएगा। अगर सर एक से नहीं हो तो दूसरा के लिए चेक करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, अगर एक से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ओके, कंसेप्ट समझिए, अगर एक से हो गया तो सबसे हो जाएगा, अगर एक से नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। सो अभी मैं बेटा यहाँ पे 5 to 7 मिनट्स की ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज
simplification of context free grammar. Next topic is simplification of context free grammar. So under this we have further 3 more topics. Simplification of context free grammar. So it is having 3 more topics. The first topic says that construction of reduced grammar. Construction of reduced grammar. Second topic says that elimination of null productions. Elimination of null production. And third topic is elimination of unit production. Right? So these are the 3 topics which we are going to discuss under simplification. So let's begin with first topic. Construction of reduced grammar. So first example is construct the reduced grammar. First question is construct the reduced grammar from the grammar G is equals to S A B E. So number 1 tuple, then you are having small a, small b, small c, then P, and then S, where S goes to A, B, A goes to small a, B goes to small b, and E goes to small c. So you have to find out the reduced grammar, or you can say that construct the reduced grammar. तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आएगा तो 2 नंबर में आपको देख लेना है कि सपोज करो कि मैंने S गोज टू AB लिखा एंड A की और B की प्रोडक्शन यहाँ पे पुट कर दो, योर आंसर विल बी A और B. इट मींस ये 2 प्रोडक्शन, ये वाली प्रोडक्शन जो है वो यूजलेस प्रोडक्शन है और E एंड C इज अ यूजलेस सिंबल्स जो आपकी डेरिवेशन ऑफ मेन स्ट्रिंग में यूज नहीं हो रही है. समझ आया? अगर पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही कर देना है, ठीक है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो कैसे करना है वो देखिए. उसके हमारे पास हैं 2 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपको बनाना है W1. सो W1 के अंदर क्या आता है? इट विल कंसिस्ट ऑफ दोज वेरिएबल्स दैट एंड्स विद टर्मिनल स्ट्रिंग्स. सो W1 के अंदर क्या आएगा? वो वाले वेरिएबल्स आएंगे जो आपके टर्मिनल स्ट्रिंग में खत्म होते हैं. टर्मिनल स्ट्रिंग मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड के ऊपर चाहे एक इनपुट आ रही है, सिंगल इनपुट आ रही है, दैट इज स्मॉल ए सिंगल आ रहा है या मल्टीपल आ रहे हैं, लेकिन चाहिए मेरे को टर्मिनल्स. ठीक है, तो W1 के अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे. एक आएगा A, एक आएगा B और तीसरा आएगा E. ठीक है, W1 के अंदर 3 वेरिएबल्स आ गए क्योंकि तीनों की राइट हैंड साइड के ऊपर एक ही टर्मिनल है, A, स्मॉल b और स्मॉल c. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो. W1 के अंदर A, B, E कैसे आया, समझ आ गया? यस सर. क्योंकि W1 के अंदर वो वाले वेरिएबल्स आएंगे जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर टर्मिनल स्ट्रिंग्स हैं, तो वो है वेरिएबल A, वेरिएबल B, वेरिएबल E. नेक्स्ट W2.
it will consists of those variables whose right side consists of either A or B or E or combination of these two. आपको अब क्या करना है, वो वाले वेरिएबल्स लिखने हैं जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर या तो ए बी आता हो या बी ई आता हो या ए ई आता हो, ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन या खाली ए, तो वो सिर्फ ए की वेरिएबल है, दैट इज एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, W1 यूनियन एस। ये समझ आया? अब आपको क्या देखना है, W1 के बाद W2 बनेगा एंड ये वाली जो चेन है ये वहां तक कंटिन्यू रहेगी जितनी देर तक ये वाली रो और नीचे वाली रो सेम नहीं आ जाती है। सो W1 के अंदर हमने वो वाले वेरिएबल्स लिखे थे जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर टर्मिनल था। W2 के अंदर क्या आएगा, W1 यूनियन जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर A आ रहा हो या B आ रहा हो या E या दो का कॉम्बिनेशन। तो AB कॉम्बिनेशन है वो क्या है, S। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, S। तो जब इसको इसके साथ यूनियन करा तो मेरे पास क्या बन गया, S A B और E, ठीक है। W3 के अंदर चेक करेंगे, W2 यूनियन किसी के राइट साइड के ऊपर S आ रहा है, ये वाली प्रोडक्शन के किसी की राइट साइड के ऊपर S नहीं आ रहा है, A नहीं आ रहा है, कैपिटल B नहीं आ रहा है, कैपिटल E नहीं आ रहा है। उसके बाद डबल चेक करो, S A आ रहा है, नहीं, A B आ रहा है, यस, S के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद B E आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर तीन का कॉम्बिनेशन S A B आ रहा है, तीन वाली कोई प्रोडक्शन ही नहीं है। उसके बाद ये क्या हो गया, दिस। जब W2 का यूनियन करा इसके साथ तो क्या होगा, ये वाली प्रोडक्शन आपकी रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या आएगा, बिकॉज W3 इज इक्वल्स टू W2, ठीक है। ये आपको उतनी देर तक कंटिन्यू करते जाना है जितनी देर तक W3 और W2 बराबर नहीं आ जाता, या फिर W4 और W3 बराबर नहीं आ जाते हैं। समझ आ गया बेटा, ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहां तक अभी तक कोई भी प्रोडक्शन एलिमिनेट नहीं हुई है, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर दो से ज्यादा प्रोडक्शन एलिमिनेट हो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन एलिमिनेट नहीं हुई। तो चारों की चारों प्रोडक्शन जो मेन प्रोडक्शन थी, S गोज टू AB, A गोज टू स्मॉल a, B गोज टू स्मॉल b एंड E गोज टू स्मॉल c, ये अगले स्टेप में जाएंगी, स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएंगी। अदरवाइज आफ्टर स्टेप 1 जो आपकी प्रोडक्शंस आती हैं वही आगे जाती हैं। उसके बाद है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, उसके अंदर भी W1 आएगा, W2 आएगा, W3 आएंगे, उतनी देर तक चलते जाएंगे जितनी देर तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसका W1 के अंदर क्या आता है, स्टार्टिंग वेरिएबल, वो है आपका S। W1 के अंदर क्या आता है, स्टार्टिंग वेरिएबल, वो है आपका S। उसके बाद आपने देखना है S की राइट हैंड साइड, W2 के अंदर क्या आता है, W1 यूनियन राइट हैंड साइड ऑफ S, दैट इज A और B। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S A B। W3 के अंदर क्या आएगा, W2 यूनियन राइट हैंड साइड ऑफ S, A, B, राइट हैंड साइड ऑफ A, स्मॉल a, राइट हैंड साइड ऑफ B, स्मॉल b, ठीक है। तो जब इसको यूनियन करूंगा इसको इसके साथ क्या आ जाएगा, S A B, स्मॉल a, स्मॉल b। W4 क्या होगा आपका, W3 यूनियन राइट हैंड साइड ऑफ S, A B, राइट हैंड साइड ऑफ A, स्मॉल a, राइट हैंड साइड ऑफ B, स्मॉल b। तो जब इसका यूनियन करूंगा W3 के साथ तो ये सेम आ जाएगा, S A B, स्मॉल a, स्मॉल b, ठीक है। सो देयरफॉर W4 इज इक्वल टू W3, W4 इज इक्वल्स टू W3। आगे नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पे S A B और स्मॉल a b ही आया है, इट मींस E goes to C is a useless production। ये आपका W4 के अंदर अपीयर ही नहीं हुआ, ना तो C अपीयर हुआ है ना कैपिटल E अपीयर हुआ है, इट मींस ये आपकी यूजलेस प्रोडक्शन है। और फाइनल प्रोडक्शन आपकी कौन सी आएंगी,
ये वाली 3 प्रोडक्शन आएगी फाइनल। समझ आ गया? सो योर रिड्यूस्ड ग्रामर इज दिस। Reduced grammar written with G dash is S goes to AB, A goes to small a and B goes to small b. क्लियर है बेटा? समझ आ गया? Yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊं इसी की? Yes, sir. So example number second is find a reduced grammar find the reduced grammar। अब आपके पास प्रोडक्शन कौन कौन सी है? S goes to AB slash CA, B goes to BC slash AB, A goes to small a, C goes to small a capital B small b। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्शंस आर गिवन टू यू। ठीक है, इसको देखते हैं कि कैसे होना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा आपका, स्टेप 1 के अंदर बनाऊंगा W1। W1 की क्या देखना है आपको? वो वाले वेरिएबल्स लिखने हैं जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर खाली टर्मिनल्स हैं। तो वो एक वेरिएबल है आपके पास कैपिटल ए और दूसरा है सी। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप, बिकॉज ए गोज टू स्मॉल ए स्लैश ए गोज टू स्मॉल ए और सी गोज टू स्मॉल बी, इसकी वजह से ए और सी आया था। उसके बाद W2 इज इक्वल्स टू W1 यूनियन। अब आपने देखना है राइट हैंड साइड के ऊपर एक एक, पहले ए आ रहा है, यहाँ किसी की राइट साइड के ऊपर खाली सी आ रहा है, वो किसी दूसरे वेरिएबल के साथ नहीं आना चाहिए। हाँ, ए और सी इकट्ठे आ सकते हैं। ठीक है, ए और सी इकट्ठे आ सकते हैं, ए के साथ बी नहीं आ सकता और सी के साथ बी नहीं आ सकता। तो पहला मैं कॉम्बिनेशन देखा, किसी की राइट हैंड साइड के ऊपर खाली ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो नो। किसी की राइट हैंड साइड के ऊपर सी आ रहा है अकेला, नहीं। इसके कॉम्बिनेशन देखो, ए सी या सी ए, यस। सो वो क्या है? एस वाली प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या आ गया? एस आ गया, बिकॉज एस गोज टू सी ए। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? W1 का यूनियन करा तो कितने वेरिएबल्स हो गए? S, A और C। उसके बाद W3 करा, W3 जब करा, W2 यूनियन, किसी की राइट हैंड साइड के ऊपर S आ रहा है, अगर W2 देख रहे हो तो दो दो आपको पेयर्स लेने हैं, अगर W3 देख रहे हो तो तीन तीन पेयर्स लेने हैं। अगर W3 देखोगे तो S A C इकट्ठे आने चाहिए, यहाँ C A S इकट्ठा आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो W2 यूनियन 5 इज इक्वल टू W2। तो आपके पास क्या आ गया? S A C, S A C रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या है? W3 इज इक्वल्स टू W2, फर्दर नहीं करोगे। और यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन आई है? एक प्रोडक्शन तो ये थी, A गोज टू स्मॉल a, C गोज टू B और S गोज टू CA। मींस स्टेप 1 के बाद आपके पास 3 प्रोडक्शन आई हैं। वो कौन कौन सी हैं? फाइनल प्रोडक्शंस आफ्टर स्टेप 1, फाइनल प्रोडक्शंस आफ्टर स्टेप 1 इज, पहली है S गोज टू CA, दूसरी है A गोज टू A और तीसरी है C गोज टू B। अब अगले स्टेप में यही 3 प्रोडक्शन जाएंगी, बाकी सारी प्रोडक्शन आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। उसके बाद है स्टेप नंबर 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। स्टेप 1 क्लियर है? हेलो? Yes, sir. चलिए स्टेप 2। अब देखते हैं कि ये जो 3 प्रोडक्शंस आई हैं इनमें से और कोई प्रोडक्शन एलिमिनेट होती है कि नहीं। सो स्टेप नंबर 2 करने जा रहा हूं।
स्टेप 2 का W1 के अंदर क्या आता था? स्टार्टिंग वेरिएबल, वो क्या है हमारे पास? S। S. W2, W1 union right side of S, right side of S is C, A। तो जब इसका यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा? S C A। देन यू आर हैविंग W3, W3 के अंदर क्या आया? W2 union right side of S, C, A, right side of C, B, right side of A, small a। ठीक है, तो ये क्या बन गया? S C A स्मॉल b स्मॉल e। W4 करोगे तो वो भी सेम आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड लेनी है तो वो सेम आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर आ गए। Therefore W3 is equals to W4 एंड आपकी जो फाइनल प्रोडक्शंस हैं वो यही तीन आएंगी। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7, तो आफ्टर द रिडक्शन स्टेप नंबर 2 यू आर हैविंग ओनली 3 फाइनल प्रोडक्शंस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे सिर्फ। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।